السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں BN نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں گے ایران کا اسرائیل پر ایک اور بھرپور حملہ، 40 بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا، ایران کا 1 گھنٹے میں اسرائیل کے 10 طیارے مار گرانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل داغ دیے۔ اسرائیل کی جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی شروع ہو گیا۔ اسرائیل کی جنگی کابینہ نے ملک میں ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ ایران کی ہدف اسرائیلی حفا بندرگاہ، شکلون اور وڈ پاور پلانٹس ہیں۔ حفا کے آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حفا پر کلسٹر میزائل داغے گئے اور اسرائیلی جنگی طیاروں نے یمن پر بھی بمباری شروع کر دی۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ یمن میں اہم حوثی رہنما کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال مزید سنگین ہونے کا خدشہ ہے۔ ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ تہران پر 2 گھنٹے تک 70 طیاروں نے پروازیں کی ہیں۔ 40 اہداف نشانہ بنائے گئے۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں اہم شخصیات پر ڈرون سے قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے رد عمل میں کہا، یہ نہیں بتانا چاہتے آیت اللہ خامنہ ای ہمارا ٹارگٹ تھے۔ اسرائیلی میڈیا نے یمن میں حوثی رہنما محمد العامری کو شہید کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ اسرائیلی حکومت ایران سے تنازع بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ جنگ میں شامل ہو۔ اعتماد ہے کہ ایران دانشمندانہ اقدام کرے گا۔ آج پوری اسلامی دنیا ایران کی سپورٹ میں متحد ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ عہدہ سنبھالنے کے بعد خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کی کوششیں کی ہیں۔ امن کا ہدف حاصل کرنے کے قریب پہنچنے پر اسرائیل نے اسے ناکام بناتا رہا ہے اور سعودی عرب اور ایران مل کر خطے کو پرامن بنائیں گے۔ ناظرین، اسرائیل کے تہران سمیت مختلف شہروں پر کروز میزائلوں سے حملے۔ اسرائیلی حملے روکنے کے لیے تہران میں ایئر ڈیفنس سسٹم متحرک کر دیا گیا۔ ایران کے صوبہ ہرمزگان، کرمانشاہ اور مغربی آذربائیجان، لورستان، تہران اور خوزستان میں ایئر ڈیفنس سسٹم کے خلاف سرگرم ہیں۔ اسرائیلی فوج کا ایران کے جنوبی شہر بندر عباس پر حملہ۔ ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیلی میزائل کو روکنے میں مصروف۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران کے آسمان پر بھی اسرائیلی میزائلوں کو روکا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مغربی صوبوں اور قم میں دشمن کے متعدد چھوٹے طیارے تباہ کیے گئے۔ اسرائیلی فورسز نے ایران کے اہم جنوبی پارس گیس فیلڈ کو بھی نشانہ بنایا ہے اور ملک بھر میں حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے تہران سمیت مختلف شہروں پر کروز میزائلوں سے حملے۔ ایرانی دفاعی نظام کی جانب سے اینٹی ایئرکرافٹ راکٹ داغے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایرانی بحریہ نے شمالی بحر ہند میں اسرائیلی میزائل حملے کی رہنمائی کے لیے موجود برطانوی ڈسٹرائر کو روک لیا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ دشمن کی مداخلت ناکام بنا دی گئی اور بحری سلامتی مکمل طور پر برقرار ہے۔ ایران کے مطابق برطانوی جنگی جہاز خفیہ مشن پر تھا اور فوری رد عمل دے کر کارروائی کی گئی۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے دوران خطے میں عسکری سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ برطانوی اور اسرائیلی حکام نے تاحال واقعے پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے ایران کو نئے حملوں کی دھمکی۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ہم ایرانی حکومت کے ہر تنصیب اور ہر ہدف کو نشانہ بنائیں گے۔ اسرائیل کی حالیہ حملوں نے ایران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل دیا۔ ہم نے ایران کے مرکزی افزودگی کے مرکز پر فیصلہ کن ضرب لگائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جوہری منصوبہ ساز سائنسدانوں کی اعلیٰ ٹیم کو نشانہ بنایا ہے۔ اس بار اسرائیلی فوج ایران کی بیلسٹک میزائل تیار کرنے کی صلاحیت کو تباہ کرے گی۔ بہت جلد تہران کے آسمان پر اسرائیلی فضائیہ کے طیارے دیکھیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کی ٹیلی فونک گفتگو۔ روسی صدر پیوٹن کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ روسی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی مذاکرات کار ایرانی نمائندوں کے ساتھ دوبارہ کام شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ اسرائیل ایران جنگ کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان متحرک۔ ایرانی صدر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اردن کے سربراہ شاہ عبداللہ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور ایران اسرائیل جنگ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ فلسطین پر مظالم پر خاموشی نے اسرائیلی اقدامات کو تقویت دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری کے خلاف کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی اقدامات عالمی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے اسرائیلی اقدامات کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान में टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान से इज़हार यकजहती, इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल इजलास में ईरान की भरपूर हिमायत की है। इसराइल की इश्तियाल अंगेज़ी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत दिफाई हक हासिल होने का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़ियाब पर ईरानी सदर से दिली ताज़ियत का इज़हार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया। ईरानी सदर का कहना था कि इस्लामी दुनिया मिलकर खतरात का मुकाबला करे। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इसराइल के ईरान पर दोबारा हमले, 100 शहादतें, सैकड़ों जख्मी हो गए। इसराइल ने ईरान के जनूबी पार्स गैस फील्ड, बंदर अब्बास, मेहराबाद एयरपोर्ट और मुख्तलिफ सूबों पर नए फ़ज़ाई हमले किए, जिनमें 100 अफराद शहीद और 300 से ज़ायद जख्मी हो गए। शोहदा में 20 बच्चे, 2 फौजी कमांडर्स और 3 एटमी साइंसदान भी शामिल हैं। गैस फील्ड में आग लगने के बाद काबू पा लिया गया। ईरान ने हवाई जहाज़ महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए और पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस फोर्स का नया कमांडर भी मुकर्रर कर दिया। ईरान ने इसराइल की 3 अहम एयरबेसेस तबाह कर दी हैं और ईरानी जनरल का इंटरव्यू में कहना है कि ईरानी हमलों से सिर्फ तल अवीव के नुकसानात दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि तल अवीव एक गुंजान आबाद इलाका है जहां लोग नुकसानात की वीडियोस बना लेते हैं। न्यूतम, तेलनोफ और ओदा एयरबेस को तबाह कर दिया गया है, मगर फौजी पाबंदी के बायस कोई खबर बाहर नहीं आ रही। नाज़रीन, इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई को बराह रास्त खबरदार करते हुए कहा कि अगर ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे तो तेहरान जल जाएगा। इसराइल कार्ड्स ने कहा कि तेहरान के बाशिंदे इसराइल के शहरियों को पहुंचने वाले वाज़ेह नुकसानात की भारी कीमत अदा करेंगे। उन्होंने जारी बयान में कहा कि ईरानी डिक्टेटर ईरान के शहरियों को यरगमाल बना रहे हैं। नाज़रीन, सिहोनी ड्रोन हमले में तेहरान के बच्चों के अस्पताल को निशाना बनाया गया। इसराइली ड्रोन ने तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से मुंसलिक हकीम चिल्ड्रन अस्पताल को निशाना बनाया। यूनिवर्सिटी के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक यह हमला एक खुली जारहियत है जिसमें बच्चों की जिंदगियां खतरे में डाल दी गई। ईरान पर इसराइली हमले में बाप और नन्ही बेटी शहीद। तेहरान पर होने वाले इसराइली हमले में 48 साल के एहसान अशराकी और इनकी 9 साल की इकलौती बेटी बारान शहीद हो गए। एहसान और बारान की शहादत ने ईरानी अवाम को गमजदा कर दिया। एहसान अशराकी बैंक में मुलाजिम थे। इनकी अहलिया हमले में जख्मी होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। तेहरान में सिहोनी हुकूमत के हमले में आम शहरी अली जैन अली और इनके 2 कमसिन बच्चे शहीद हो गए। इसराइल की जानिब से आम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है, जिस पर आलमी सतह पर शदीद तशवीश पाई जाती है। तेहरान की सड़कें इसराइली हमलों में हलाक होने वाले साइंसदानों और कमांडरों के पोस्टरों से भर गईं। तेहरान की सड़कों पर इसराइली हमलों में हलाक होने वाले ईरानी जौहरी साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फरीदौन अब्बासी दवानी के साथ साथ पासदारान इनकलाब के कमांडर्स मेजर जनरल हुसैन सलामी, मेजर जनरल गुलाम अली रशीद, एरोस्पेस फोर्स के कमांडर अमीर अली हाजीजादा और मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की तस्वीर वाले पोस्टर्स अवेजा किया गए। ये पोस्टर्स अवामी गम व गुस्से और कौमी यकजहती की अलामत के तौर पर नुमाया मकामात पर लगाए गए हैं। ईरान, यमन और लेबनान में शहरियों का खुशी का इजहार। मोदी हुकूमत का इसराइल के साथ गठजोड़। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में फ़लस्तीन के हक़ में करारदाद के मौके पर भारतीय नुमाइंदा गायब, गैर हाजिरी पर कांग्रेस की शदीद तनकीद। कहा, फ़लस्तीन में 60,000 से ज़्यादा जानें ज़ाय हो चुकी हैं, हज़ारों लोग भूख से मर रहे हैं, बैनुल-अक़वामी इमदाद बंद हो गई है। ये एक इंसानी अलमिया है। ऐसे वक्त में भारत को गज़ा में जंग बंदी की हिमायत में मजबूती से खड़ा होना चाहिए था, लेकिन भारत ने जंग, नस्लकुशी और इंसाफ के खिलाफ अपना उसूली मौक़िफ़ तर्क कर दिया है। आज भारत अपने उसूलों को छोड़कर तल अवीव के सामने झुक गया है। मोदी सरकार को समझना पड़ेगा कि दुनिया इस मुल्क की नहीं सुनती जो सबसे ज्यादा बोलता है। पूरे हौसले और ज़मीर से बात करने वालों को दुनिया सुनती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान में टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान से इज़हार यकजहती, इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल इजलास में ईरान की भरपूर हिमायत की। इसराइल के इश्तियाल अंगेज़ी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत दिफाई हक हासिल होने का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़ियाब पर ईरानी सदर से दिली ताज़ियत का इजहार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया। ईरानी सदर का कहना था कि इस्लामी दुनिया मिलकर खतरात का मुकाबला करे। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक किया गया।
हुकूमती सफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मसला कश्मीर और दहशत गर्दी का कोई फौजी हल नहीं। भारत ने हमेशा मुज़ाकरात से इनकार किया। जब मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा होगा। ब्रसेल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कश्मीर समेत तस्फिया तलब मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। दो एटमी ताकतें होने के बायस पाक भारत कशीदगी तेजी से बढ़ी। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान की पेशकश को कबूल करने से इनकार किया। जंग किसी मसले का हल नहीं। भारत की पानी बंद करने की धमकी पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। We believe it's the only way for us to address all issues. There's no military solution to the issue of Kashmir. There's no military solution to the issue of terrorism. There's no military solution to any of the problems. And the simple reason is that the threshold for full-blown war between two nuclear powers has been so drastically reduced that we've never been at this level in our history. That it was illegally violating the Indus Water Treaty. Pakistan believes we need a comprehensive dialogue with India, be it the root cause of Kashmir, be it the root cause of terrorism. Pakistan has talked about bilateral comprehensive dialogue. The Indians say no. अभिनंदन को वापस करना सरेंडर था। इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म और साबिक़ आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने मिलकर कौमी वक़ार को ठेस पहुंचाई। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इस वक्त कहा गया हम जंग लड़ने के काबिल नहीं, तैयारी उड़ाने के लिए तेल नहीं, ऐसा कहना कौमी अहमियत की तौहीन थी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। हमने 5 गुना बड़े दुश्मन को मट्टी में रोल दिया। तवील मुद्दत के बाद रियासत में एतमाद बहाल हुआ। अवाम का एतमाद बहाल हुआ कि इनके मुहाफ़िज़ दलेर और बाहौसला हैं। इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म और साबिक़ आर्मी चीफ का हौसला भी देखा और आज की क़यादत का भी। भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया। किसी मरहले पर किसी के जहन में यह ख्याल तक नहीं आया कि कौमी वक़ार पर कोई समझौता करेंगे। सारी सियासत का महवर एक शख्स को बना देना हुबल वतनी नहीं, ये पीरी फ़कीरी नहीं कि आप गद्दी नशीन बन जाएं। नई लीडरशिप तैयार करें ताकि आपको पार्टी आपकी जिंदा रहे। इलेक्शन को गुजरे 1.5 साल हो गया है और एक ही राग अलापा जा रहा है। सारे राग बेसुरे हो गए हैं। एक शख्स की पूजा से नहीं बनती, और उस शख्स की जिसको ड्राई क्लीन करने को भी कोई तैयार ना हो। हमने अभिनंदन को वापस किया और वो एक सरेंडर था। आपको याद होगा इसी ऐवान में टांगे कांपने की जो बात हुई, आर्मी चीफ और उस वक्त के वजीर आजम ने मिलकर कौमी वकार को ठेस पहुंचाई। ये कौमी हमीयत की, कौमी इज्जत की जो है एक इंसल्ट थी कि कहना जी हम जंग नहीं लड़ सकते, और फिर शीशा पलाई हुई दीवार बन के हमने दिखाया, हमारे फौजियों ने दिखाया, जिसको ये 24 घंटे जो है, जो इनके इंटरनेशनल जो वॉरियर्स हैं, साइबर वॉरियर्स जो हैं, वो उनको गालियां देते हैं उसके ऊपर सोशल मीडिया को। 5 गुना बड़ा मोदी का जो गुरूर जो है मट्टी में मिला दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि पाकिस्तान खिते में अमन का फ़रोग़ चाहता है। फ़लस्तीन का आज हमारे दिलों के करीब है। पाकिस्तान ने गजा के मुसलमानों पर जारी मज़ालिम की हमेशा मज़म्मत की है। पाकिस्तान ने हर आलमी फ़ोरम पर फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाई। एक पार्टी की खातून रहनुमा ने इसराइल की हिमायत में तकरीर की। मुल्क से बाहर बैठ कर प्रोपेगेंडा करने वाले मुल्क का नुकसान करते हैं। बानी PTI ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र भिजवाने से रोकने की कोशिश की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भिजवाई। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को भरपूर रिलीफ दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 55 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बजट में आवाम को रिलीफ फराहम नहीं किया गया। पेशावर में सेफ सिटी मनसूबा आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। अपोजिशन ने आवाम के लिए बजट के हवाले से कोई तजावीज़ नहीं दी। अभिनंदन की वापसी का फैसला PTI ने नहीं, इस पार्लियामेंट ने किया था। PTI रहनुमा असद कैसर का वज़ीर दिफा को जवाब। ईवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ये पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं। क्या ये सीट आवाम ने आपको दी है? आपको ज़मीर मलामत नहीं करता। पूरे लाहौर में मुस्लिम लीग नून 2 सीटें जीती। बानी PTI पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है। एक अनपढ़ बैठकर अपोजिशन लीडर की तकरीरों को काट रहा है। ख्वाजा साहब, आपने तो पूरी नस्ल तैयार की, लेकिन कोई लीडर नहीं होगा। ईरान का साथ देना हमारी अखलाकी फ़र्ज है। इस वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी है कि OIC इजलास बुलाने के लिए किरदार अदा करे।
کہ अभिनंदन को कि वापस इस पार्लियामेंट ने फैसला किया था, ये किसी हुकूमत ने फैसला नहीं किया था, इस पार्लियामेंट ने फैसला किया था। आप इस वक्त जिस इस सीट पे बैठे हैं, क्या आप इस सीट को आवाम ने आपको दिया है? आपको ज़मीर मरामत नहीं करता? आपके अंदर कोई शर्म और हया नहीं आती? इमरान खान जो कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, पूरे लाहौर में सिर्फ 2 सीटें मुस्लिम लीग जीती है। ख्वाजा साहब, आपने तो एक पूरा नस्ल तैयार किया हुआ है। एक अनपढ़ यहाँ बैठ के अपोजिशन लीडर और MNAs की प्रिविलेज को तोड़ा ब्रेक कर रहा है और उसकी तकरीरों को काट रहा है। ईरान के साथ जो है ना, उसका मुकम्मल साथ देना ये हमारा अखलाकी फर्ज है। पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इफेक्टिवली इसी को बुलाने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। नाज़रीन, ईरान ने NPT से अलग होने की धमकी दे दी। ईरान ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया है कि अगर बेबुनियाद इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रहा तो वो NPT से अलग हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब सईद इरवानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ख़त जमा कराया है, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि बरतानिया, फ़रांस और जर्मनी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ख़त के मुताबिक अगर ये तीनों ममालिक ईरान पर पाबंदियाँ बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ रहे तो ईरान एटमी अदम फैलाव के माहिदे NPT से दस्तबरदार हो जाएगा। खत में कहा गया है कि मगरबी इक़दामात का मुतनासिब जवाब दिया जाएगा और आर्टिकल 10 के तहत NPT से अलहदगी इख्तियार करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। फाइनेंस बिल 2025 और 26 में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कमिश्नर्स को गिरफ्तारी के इख्तियार देने की तजवीज़ पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इजलास में कमेटी अरकान ने FBI को दिए जाने वाले मुजवज़ा इख्तियारात पर सख्त तनकीद की है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि FBI कमिश्नर्स को इख्तियारात देना मुल्क को पुलिस स्टेट बनाने के मुतरादिफ है। मुल्क पहले ही ऐसी सूरत हाल से दो चार है जहाँ जिसे चाहे उठा लिया जाता है। सेनेटर सलीम मालवी वाला ने कहा कि अफसरान को वसी इख्तियारात देना मनी लॉन्ड्रिंग के गलत मुकदमात का बायस बन सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग का नोटिस मिलने पर कारोबार तबाह हो जाते हैं। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा अगर ये कानून मंजूर हो गया तो कारोबारी अफराद के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। चेयरमैन FBI ने वजाहत दी कि यह कानून नया नहीं बल्कि पुराना है, सिर्फ तरीक़ेकार में तब्दीली की गई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदा करार देते हुए यकीन दहानी कराई कि इस मामले को बग़ौर देखा जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पूरे पाकिस्तान में मोटर वे बना दिए और सखर मोटर वे पर आकर पैसे ख़त्म हो जाते हैं। कहते हैं मोटर वे के लिए पैसे नहीं, IMF प्रोग्राम है। शाहरा भुट्टो कराची के अवाम के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत का एक अहम तोहफ़ा है। अवाम को सहूलतों की फराहमी पीपल्स पार्टी की तरजीह है। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की की ज़मानत है। बिलावल भुट्टो ने 11 जनवरी को शाहरा भुट्टो के फ़ेज़ 1 का इफ्तिताह किया था। मुझसे वादा किया गया कि मई में इफ्तिताह कर देंगे। मनसूबों की तकमील में किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। में मोटरवे बना दी है, ये एक मोटरवे पे आके तो हर चीज याद आ जाती है कि जी पैसे नहीं है, हम गरीब मुल्क हैं, IMF की कंडीशनैलिटीज है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची, हैदराबाद व सखर मोटरवे मनसूबों पर वज़ीर आला सिंध के बयान के बाद वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमतों ने कीमती वक्त ज़ाया किया मगर मौजूदा वफाकी हुकूमत कराची से सखर तक मोटरवेज़ को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेगी। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि वो साबिक़ा हुकूमत की गफलत पर कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन हकीकत यह है कि कराची, हैदराबाद और सखर मोटरवे के मनसूबे बरसों ताख़ीर का शिकार रहे। उनका कहना था कि गुज़श्ता एक साल से वज़ारत मवासिलात की जिम्मेदारी संभालने के बाद वह इन मनसूबों पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि कराची मोटरवे मुकम्मल नहीं होती तो पूरे मोटरवे नेटवर्क की अफादियत मुतासर होगी। कराची पोर्ट का सखर मोटरवे से मुंसलिक होना मुल्क की इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और कारोबारी नकल व हरकत के लिए ज़रूरी है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि नॉर्दर्न बाईपास को 8 लेन की मोटरवे में बदला जाएगा और इसे भी हैदराबाद मोटरवे से मुंसलिक किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आला सिंध का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अगर 25 अरब रुपए की जरूरत पड़ी तो वो जरूर तावन तलब करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का हसन मुर्तज़ा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मरियम नवाज पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचा रही हैं। आप निजी महफिलों में मानते हैं मरियम नवाज ख्वाब नहीं हकीकत दे रही हैं। संबरियाल में गली गली जाकर तरक्की देखी है, बजट पेश हुआ नहीं, आपने पहले ही मुस्तरद कर दिया। जो अपनी सीट नहीं जीत सका वो हमें ना सिखाए, दिखाने को कुछ हो तो साल 1.5 साल काफ़ी है, ना कारकर्दगी हो ना विजन हो तो 16 साल भी कम हैं।
مولانا فضل الرحمان نے نیز سیاسی اتحاد کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ فیصل واڈا نے کہا ہم مولانا کے ساتھ مل کر چلیں گے، سیاسی بساط بچھا دی ہے، اب گیم شروع ہوگی۔ فیصل واڈا نے مزید کہا کس پیادے کو ہٹانا ہے اور ملک کو کیسے آگے لے جانا ہے یہ سب منصوبہ بندی کے تحت ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ملک کا آئین اور قانون غیر مؤثر ہو چکا، بیرونی دباؤ پر قانون سازی کی جا رہی ہے جو نو آبادیاتی طرز کی نشاندہی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر بے لگام بیانیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جو دل میں آئی کہہ دینا شریعت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ واریت کے ساتھ ساتھ لسانیت، صوبائیت اور علاقائیت بھی ملک میں فساد کی اہم وجوہات ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔